Recombinant DNA, also known as chimera. It is the combination of two DNA strands that are constructed in the laboratory artificially. यानी दो डीएनए स्ट्रैंड्स को कंबाइन करके एक सिंगल डीएनए कंस्ट्रक्ट किया जाता है artificially. This is called recombinant DNA. Or we can define the combination of two DNA strands from two different organisms to construct one DNA. This is also known as recombinant DNA. या दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दो डिफरेंट डीएनएस को कंबाइन करके एक सिंगल डीएनए की कंस्ट्रक्शन की जाती है. फॉर एग्जांपल, वन स्ट्रैंड फ्रॉम द ह्यूमन एंड द अदर इज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल. तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हो गए, एक बैक्टीरियम और एक ह्यूमन. इन दोनों के डीएनएस को कंबाइन करके एक सिंगल डीएनए कंस्ट्रक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है. रिकम्बिनेंट डीएनए इज आल्सो नोन एज काइमेरा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स यूज हुए हैं, दो डिफरेंट डीएनएस जो है वो कंबाइन किए गए हैं. डीएनए जो है वो टू भी हो सकते हैं, मोर देन डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, मोर देन टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए भी हो सकते हैं, ताकि एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंस्ट्रक्ट किया जा सके. For example, this is a recombinant DNA in which two DNAs are combined, that is the part of the human DNA or strand from the human DNA, while that one is the bacterial DNA strand. These two strands are combined to form a single DNA known as recombinant DNA. यानी इसके अंदर दो DNAs को कंबाइन किया गया है. ये आपके पास ह्यूमन डीएनए का स्ट्रैंड है और ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए स्ट्रैंड है. दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सिंगल डीएनए बनाया गया है, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. रिकम्बिनेंट डीएनए मेथडोलॉजी. देयर आर 3 मेथड्स यूज फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन. देयर आर number 1 transformation, number 2 phage introduction, while number 3 is non-bacterial transformation. Transformation. Steps involved in transformation are: select a piece of DNA that is known as the desired gene, which is to be inserted into the vector. Cut that piece of DNA with the restriction enzymes. Restriction enzymes are those enzymes which are used to cut the DNA at specific sites. And these restriction enzymes are specific for the specific sites. Third, take a vector, for example, plasmid from bacterium. Vectors are mostly derived from the bacterial cells, and the vectors are the extracircular DNAs present in the bacterial cell. Fourth, digest the vector DNA with the suitable restriction enzymes and make it linear with sticky ends. It means that cut the vector DNA for the insertion of desired gene through the same restriction enzymes as were used for the cutting of the desired gene, to make the sticky ends to insert their desired gene into the vector.
Fifth, insert the desired gene into the vector. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, उसका डीएनए लेंगे, उस डीएनए में से अपना डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे बाय यूजिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स जो है ये डीएनए की कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल सेल से वेक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड। वेक्टर जो है मोस्टली बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किए जाते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। फिर इस वेक्टर को डाइजेस्ट करेंगे उसी रिस्ट्रक्शन एंजाइम के ज़रिए से जो हमने डिज़ायर्ड जीन की आइसोलेशन के लिए यूज़ किया था, ताकि इसके स्टिकी एंड्स बनाए जा सकें। स्टिकी एंड्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सूटेबल हमारा या डिज़ायर्ड जो हमारा जीन है उसको इसके अंदर इंसर्ट किया जा सके। उसके बाद उस डिज़ायर्ड जीन को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। Number 6, then ligate the DNA insert into the vector with DNA ligase. This DNA insert consists on selectable markers which are used for the identification of recombinant molecules. An antibiotic marker is often used so as a host cell without a vector dies when exposed to a certain antibiotic, and the host with the vector will live because it is resistant. Number 7, that vector is inserted into the host cell. Mostly the Escherichia coli is used, and this process is called transformation. Identification of transformed clone is carried out by using the selectable markers, that are antibiotic markers, to identify its color changes or any other characteristics. These are used to distinguish transformed host from the non-transformed host. यानी डीएनए जब इंसर्ट कर लिया जाता है वेक्टर के अंदर, फिर वहाँ पे डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे। डीएनए लाइगेज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है जो इस डीएनए इंसर्ट को इस वेक्टर के अंदर लाइगेट कर लेगा। लाइगेट मीन उसकी जॉइनिंग कर लेगा। अब इस डीएनए इंसर्ट के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए लास्ट में यूज़ होंगे। फिर इस वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। होस्ट सेल मोस्टली ई कोलाई यूज़ किया जाता है और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आया इस होस्ट सेल ने इस वेक्टर को अडॉप्ट कर लिया है या नहीं किया है, तो उस पर्पस के लिए फिर उस ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन की, यानी ट्रांसफॉर्म क्लोन से मुराद यही वेक्टर है जिसके अंदर हमने डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट किया हुआ है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, कि आया इस होस्ट सेल ने इसको अडॉप्ट कर लिया है या नहीं किया है। तो उस पर्पस के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ होते हैं जो यहाँ पे इस डीएनए इंसर्ट के अंदर प्रेजेंट है। उसको चेक करने के लिए उसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है। अगर उसने एंटीबायोटिक को रेजिस्ट किया तो मीन्स कि क्लोन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। लेकिन अगर उसने उसको रेजिस्ट नहीं किया, उसकी डेथ हो गई, तो मीन्स के क्लोन की ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस होस्ट के अंदर नहीं हुई। फिर उसका कलर चेंज जो है, कलर चेंजेस उसमें चेक किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं ताकि होस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी जो हो ट्रांसफॉर्म होस्ट है उसको नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सके। This is the diagrammatic representation of transformation
in which the host cell, for example human or any other organism, is lysis and the chromosome is isolated. Then after isolation of chromosome, the DNA is isolated from that chromosome because the chromosome consists of DNA and proteins known as histones. So here the proteases are used to isolate the pure DNA. Extraction enzymes are used to cut that DNA, the desired gene which are used to be cloned. Here the suitable extraction enzymes are used, for example EcoR1 if the host cell is E. coli. Then the desired gene is isolated or cut down through these extraction enzymes, so that is the desired gene. After isolation of the desired gene, the vector, for example plasmid, which is taken from the bacterium mostly, this vector is isolated and it is also cut down through restriction enzymes, the same restriction enzymes that are used for the cutting of the desired gene from the DNA of the organism. These restriction enzymes are used to make the sticky ends of the vector for the insertion of the desired gene. Then after making the sticky ends, the desired gene is inserted into that vector and DNA ligases are used to join these ends. So that is a recombinant DNA consists on desired DNA strand or desired gene and a vector DNA. So the recombinant DNA is the combination of two different DNAs from the two different organisms. Then this recombinant DNA is inserted into the expression system, which is used mostly the Escherichia coli or E. coli for the expression or for the production of the product. And this recombinant DNA is identified by using the selectable markers. Mostly antibiotic resistant markers are present, so the antibiotics are used to check out whether the recombinant DNA is adopted into that system or not. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखें तो हम दो ऑर्गेनिज्म से डीएनए लेंगे. सबसे पहले होस्ट सेल, वो ह्यूमन भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. सेल की लाइसिस करेंगे, मीन कि उसकी ब्रेकिंग करेंगे और उसमें से क्रोमोसोम को आइसोलेट करेंगे. फिर उसके बाद प्रोटीएजेस यूज़ करेंगे क्योंकि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑन प्रोटीन्स एंड डीएनए. तो उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन्स जो है उसको डिज़ोल्व करेंगे और ओनली डीएनए जो है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है. फिर उसके बाद रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स यूज़ करेंगे ताकि डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स पे कटिंग कर सके, हमारा डिज़ायर जीन जो है उसको हम आइसोलेट कर सकें. डिज़ायर जीन आइसोलेट करने के बाद हम वेक्टर लेंगे. वेक्टर जो है ये बैक्टीरियम में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मिड हम ले रहे हैं तो इस वेक्टर को बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे और यहाँ पे भी रिस्ट्रक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे. आर ई रिप्रेजेंट एज रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स. वही रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स यूज़ करेंगे जो हमने डिज़ायर जीन की कटिंग के लिए यूज़ किए हैं. और कटिंग जो है उसके रिजल्ट में स्टिकी एंड्स बनेंगे ताकि डिज़ायर जीन इसके अंदर इंसर्ट कर सके. डिज़ायर जीन की इंसर्शन के बाद डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पे इसके एंड्स को वो ज्वाइन कर सकें. अब ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है जिसमें डिज़ायर डीएनए भी मौजूद है और वेक्टर डीएनए भी है. इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को या इसी क्लोन को फिर हम जो एक्सप्रेशन सिस्टम जिसको कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट ने बनना है, ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली हम इकोलाई ही लेते हैं, बैक्टीरियम, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंसर्शन के बाद फिर चेक किया जाता है कि आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर अडॉप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी जो ट्रांसफॉर्म क्लोन है और नॉन ट्रांसफॉर्म क्लोन है उसके अंदर रिकॉग्निशन के लिए फिर इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स मौजूद होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स मौजूद होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया जो है यहाँ पे अगर इसकी डेथ हो जाती है तो मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो इट मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है और उसने एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर दिया है। सो दैट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Second is the phage introduction. Phage introduction is the process of transfiction which is equivalent to the transformation, except a phage is used instead of bacteria. Mostly lambda or MI3 phages are used for the phage introduction or for the formation of recombinant DNA. The recombinants that are created can be identified by differences in the recombinants and non-recombinants using various selection methods. यानी phage introduction टेक्निक जो है वो just like transformation है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फेज यूज़ करेंगे जिस तरह लैम्डा है या MI3 फेजेस हैं, बैक्टीरिया की जगह यहाँ पे सिर्फ फेजेस यूज़ किए जाते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो उसके लिए डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उसके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। थर्ड इज़ द नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। The non-bacterial transformation is very similar to the transformation, but the only difference is that here it doesn't use bacterium as a host cell. Instead of bacteria, two methods are used. There is microinjection, in which the DNA is directly injected into the nucleus of cell for transformation, while the second method is bioelastics, in which the host cells are bombarded with high velocity microprojectiles. Microprojectiles are a particle of gold or tungsten coated with the DNA. Here is the microprojectile having DNA coated with gold or tungsten. नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियम यूज़ नहीं करते, बल्कि बैक्टीरियम की जगह दो मेथड्स यूज़ होते हैं। एक माइक्रो इंजेक्शन है और दूसरा बायोलास्टिक्स है। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जबकि बायोलास्टिक मेथड में जो होस्ट सेल्स हैं उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स की, और इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि इजीली जब इसको बम्बार्ड किया जाता है एक सेल के ऊपर तो ये उसमें एंटर हो जाते हैं। माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो है ये हमारे पास डीएनए होता है जिसको हमने इंसर्ट करना है, उसके ऊपर गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग की गई होती है, इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहा जाता है।